हेलो हाँ जी सर। मैम, लाइव कर दिया, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में वी वर डूइंग परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन कर रहे थे। थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट वेयर कंज्यूमर and producer both have perfect knowledge about the market. ठीक है, and firms are price taker not the maker. For the equilibrium in the short period, firm can earn normal profit, supernormal profit, and even sometimes they have to face the losses. ठीक है, and also the conditions of equilibrium are MR equals to MC and the slope of MC is greater than the slope of MR. ठीक है, तो यहां तक हमने किया था लास्ट क्लास में। And the revenue curves are perfectly, the industry will determine the prices. This is for the industry, and the firms are the price taker, not the maker. ठीक है, industry will determine the price according to demand and supply curve. Demand and supply curve. The equilibrium, this is the price determined by the industry, and the firms will take this price. Okay, so this is nothing but the AR, MR or the price in the perfect competition for the firm. Equilibrium, we need two curves. Average cost curve. Cost curves are normal U-shaped curve, and the marginal cost curve. The conditions of equilibrium are MR equals to MC. Now look at the MR equals to MC point. This is MR. This is MC. जहां पे ये दोनों पॉइंट्स कट करते हैं, that is your equilibrium point. This is MC and this is MR. This is not, this is AC is equals to MR, ये नहीं है. This is the MC equals to MR. Firm's equilibrium. So the price तो हमें already पता है, इंडस्ट्री ने डिटरमिन की थी प्राइस. So OP is the price determined by the industry. ठीक है, सेकंड कंडीशन भी है, यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड हुई, बट देयर इज अ सेकंड कंडीशन, दैट इज द स्लोप ऑफ MC बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ MR. अभी बता रही हूँ वो भी चीज. सी यहाँ पे भी MC इज इक्वल्स टू MR है, और यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ MC इज डिक्लाइनिंग and the slope of MR is high. So इस पॉइंट पे slope of MC is rising. तो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मिस्टेक नहीं करनी. ये AC is equals to MR है, ये AC is equals to MR है, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं है. ठीक है, फॉर द कॉस्ट अब मुझे देखना है इस फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है या लॉसेस है. उसके लिए मैं क्या करूंगी, I'll try. ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जहां से इक्विलिब्रियम हमने फाइंड आउट की थी, ये जहां पे AC को कट करती है, ये वाले पॉइंट पे. सो दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट. ठीक है, ए
ठीक है, ये पॉइंट है. सो राइट नाउ द प्राइस इज इक्वल्स टू ओपी, कॉस्ट equals to OC. Total revenue is the entire P into Q. This is P, equilibrium quantity, Q. So total revenue equals to P into Q. That is OP multiplied by the OQ, which is equals to OPEQ. Total cost OC minus TC, which is equals to OPEQ minus OCAQ, which is equals to PCEA. ये सारा एरिया starting from this point, this point, this point and this point is the total revenue. This area from this total cost, difference between these two is nothing but your profit. So ये जो red shaded area है, this is profit. ठीक है, of the firm. For normal profit, ये कॉस्ट कर्व्स थोड़े ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, दी नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट भी उतनी है जितना हमारा रेवेन्यू है. लॉस में ये कर्व्स थोड़े से और ऊपर शिफ्ट हो गए. इक्विलिब्रियम कंडीशंस वही रहेंगी. MR equals to MC and slope of MC is greater than the slope of MR. अब मुझे कॉस्ट देखने के लिए I have to extend this line towards the cost curve. So ये जो shaded area है, this is nothing but the loss. In the long run, firms are earning only the normal profit. ठीक है, but ये losses कब तक bear करे firm? Till what point the firm can bear the losses? So उस point को हम बोलते हैं shut down point. ठीक है. So let's suppose this is the revenue, this is the cost. आप सिंपली देख पा रहे हो कि फर्म्स को जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं. अभी देखा था हमने कि ये फर्म्स को क्या हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, नहीं बना रही हूँ फॉर द टाइमिंग, नहीं तो कंफ्यूजन लगेगी. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं फर्म. नाउ लेट्स सपोज इंडस्ट्री जो है वो प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रही है somehow because of any reason. Industry is declining the prices. Firm will still operate. The reason is that कि firm पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था,
फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट एंड जो है इक्विलिब्रियम, जब हम कॉस्ट बनाते हैं तो हम प्रॉफिट जरूर ऐड करते हैं, ठीक है। शटडाउन पॉइंट के लिए हमें एक और कर्व चाहिए होगा, दैट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो भी यू शेप्ड है, ठीक है। नाउ अगर इंडस्ट्री और प्राइस कम कर देती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्म को अगर इंडस्ट्री ने ये प्राइस चार्ज कर दी P2, यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, लॉसेस, बट फर्म जो है अपना फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर पा रही है फ्रॉम दी आफ्टर सेलिंग दी प्रोडक्शन, ठीक है। सो इस वजह से कि दिस इज नॉट द शटडाउन पॉइंट, फर्म विल स्टिल ऑपरेट इन दी ऑपरेशंस। हाँ, उसके बाद ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के बाद when the firm will like try to improve their technology or something so that they can earn normal profit. But when if the price is P3 प्राइस अगर मार्केट में हो जाती है, in that case फर्म्स जो हैं वो लास्ट पॉइंट है जहां पे काम करेंगे, बिकॉज वो मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर हल्की सी भी प्राइस जा रही है तो फर्म को जो है फिक्स्ड कॉस्ट अपनी पॉकेट में से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो विद दैट वी वांट लॉ एटलीस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट अर्न कर सके, तब तक वो ऑपरेट करे, अदरवाइज वो फर्म को शट डाउन करता है। So shutdown point is equals to the minimum point of average variable cost. This is the shutdown point, ठीक है। Now supply curve, इसके नीचे फर्म ही बन रहा है जीरो सप्लाई, तो फर्म का सप्लाई कर्व कहां से स्टार्ट होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी से, एंड जैसे जैसे प्राइसेस हाई होती जाती हैं तो फर्म की सप्लाई भी ज्यादा होती जाती है। सो दैट मींस अपवर्ड राइजिंग पार्ट ऑफ द एमसी कर्व, अपवर्ड राइजिंग पार्ट ऑफ द एमसी कर्व, ये रेड लाइन जो है, this is nothing but the supply curve of the firm under the perfect competition. Any question till now? Any question till now? याद रखना शटडाउन पॉइंट आएगा, सो इन दैट केस जो भी मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी है, अगर न्यूमेरिकल में भी आता है तो आप पता क्या करना, क्या कैसे फाइंड आउट करना, एवीसी को एमसी के इक्वल पुट कर देना, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आती है तो एसी को एमसी के इक्वल कर लेना, और लॉन्ग रन में एआर भी इक्वल है, एमआर भी इक्वल है, एंड प्राइस भी इक्वल है। अगर ये सारे कर्व्स इक्वल हैं किसी एक पॉइंट पे, तो दैट मींस फर्म इज अंडर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अगर ये नहीं इक्वल, एसी एमसी नहीं इक्वल, सो इन दैट केस, मतलब हाँ जी, एसी एमसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं इक्वल है, सो इन दैट केस जो है बेसिकली हमारा जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नहीं है, वो इक्विलिब्रियम कौन सी है, वो इक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बस बच्चे ऑलरेडी है आपके पास, आपकी एसयूएल की वेबसाइट पे भी है। आई होप यहां तक कोई क्वेश्चंस नहीं है।
लॉन्ग रन सप्लाई कर्व नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, इन द लॉन्ग पीरियड चीजें याद रखना, फर्म इज अंडर द perfect competition. Equilibrium is where जहां पे demand equals to supply, ठीक है, and price is determined ठीक है, by the firm. Price is determined by the industry and taken by the firm. Long period में we know that के firms are under the normal profits only, ठीक है। अब let's suppose demand curve shifts because of n number of reasons, demand changes. डिमांड चेंज के रीजंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिमांड शिफ्ट्स, इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री इंक्रीजेस द प्राइस, इंडस्ट्री इंक्रीजेस द प्राइसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म्स को जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने शुरू हो गए। पहले वो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे थे, अब ये E1 पे हैं, ये वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। मैं नहीं बना रही बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड लगेगी डायग्राम, ठीक है। अब क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने शुरू हो गए इंडस्ट्री में लॉन्ग पीरियड में। व्हाट विल हैपन, न्यू फर्म्स विल एंटर, न्यू फर्म्स विल एंटर। अब तीन यहाँ पे चॉइसेस है, या तो तीन जो न्यू फर्म्स एंटर होंगी वो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में होंगी, या इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में, या डिक्लाइनिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री मींस द कॉस्ट कर्व्स विल रिमेन सेम, यही जो पहले थे वही रहेंगे। सो उस केस में हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ऐसे शिफ्ट होगा कि जो प्राइसेस है विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इफ आई ज्वाइन पॉइंट E and E2 आई विल गेट ए कर्व जिसको मैं बोलती हूँ सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री इन द शॉर्ट लॉन्ग पीरियड, सॉरी, ठीक है। सो द ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल डिक्लाइन, देन इंडस्ट्री विल बी इन इक्विलिब्रियम। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में मैं पहले साथ ही बता रही हूँ, उसके बाद डायग्राम से बताऊंगी। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जैसे जैसे फर्म्स एक्सपैंड होंगी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो इन दैट केस द न्यू प्राइसेस विल बी डिटरमिन्ड एंड द कॉस्ट कर्व जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में कॉस्ट कर्व नीचे को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। I'll try to make all these three in a same मतलब आपके सामने बना देती हूँ so that आपको
इनमें डिफरेंस समझ आ रहा है। दिस इज डिमांड कर्व, this is supply curve, E will be the equilibrium point, this is the ठीक है। ओके, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होगा, वही चीजें हैं जो अभी तक की थी। ठीक है, नाउ डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड्स, industry is expanding, new equilibrium point is at E1, okay? Now the firms are running supernormal profit। ठीक है, अब सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो क्या हो गया, न्यू फर्म्स विल एंटर इन द इंडस्ट्री, न्यू फर्म्स एंटर होंगी तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये केस था मेरा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का। अब ये केस है मेरा नाउ द सप्लाई, लेट्स सपोज डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट, प्राइसेस विल डिक्लाइन, जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है, जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, न्यू प्राइसेस विल डिटरमिन, न्यू कॉस्ट कर्व विल डिटरमिन विद इन द इंडस्ट्री, एंड क्योंकि वो डिक्लाइनिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द न्यू प्राइसेस विल डिटरमिन, न्यू आउटपुट विल डिटरमिन। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आपको याद होगा मैंने रिटर्न्स टू स्केल आपको कराया था, या फिर इसको डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, मैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का कोशिश करती हूँ, बट इट्स टफ टू मेक टू डायग्राम्स टुगेदर। ओ सॉरी, एक चीज रहेगी लास्ट डायग्राम में, कॉस्ट कर्व तो बनाया, सप्लाई कर्व तो बनाया ही नहीं। बाय ज्वाइनिंग पॉइंट E and E2 will get the long run supply curve। ठीक है, ऑफ द इंडस्ट्री। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में ये पैरेलल है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इंक्रीजिंग में ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, this is the prices, this is the equilibrium, okay, and this is the cost curves, ठीक है। now demand curve shifts upwards, demand curve shifts, prices rises, supernormal profit to the firms, supernormal profit to the firms। now supernormal profit की वजह से new firms will enter and the cost industry कौन सी है, increasing, means जैसे जैसे firm expand करेंगी
तो जो इक्विलिब्रियम है, जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द न्यू एंड दिस इज द कॉस्ट कर्व जो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के हैं या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोल सकते हैं। नाउ फिर अगेन फर्म्स इक्विलिब्रियम में होगी। नाउ बाय ज्वाइनिंग पॉइंट E and E2 we get the supply curve. I hope it's clear. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बच्चे जहां पे फर्म को ज्यादा प्रॉफिट होता है ओवर एंड अबव दी कॉस्ट, ठीक है। मींस जितना आपको कॉस्ट है उससे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। जैसे इस केस में अब आप देखो यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस ये प्राइस है P2, मेरी यही कॉस्ट, इससे समझते हैं, इसमें लाइंस कम है तो यहाँ जल्दी समझ आएगा। दिस इज प्राइस एंड यही कॉस्ट है, मतलब प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट, तो नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का आता है, ये प्राइस है मेरी, कॉस्ट का मेरा वहां पे सेम है, यही वाला पॉइंट यहां से इसमें मत बनाना, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये क्यों आ गया? सो दिस इज द डिफरेंस। ये मेरी कॉस्ट है, AC तक कॉस्ट आएगी एंड दिस इज माय रेवेन्यू एंड दैट द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज नथिंग बट योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, एक क्वेरी थी लास्ट क्लास में किसी स्टूडेंट की, तो मैंने उसको कहा था नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जो भी क्वेरी थी किसी की भी, वो प्लीज मतलब टाइप कर दो दोबारा से। मुझे क्वेरी तो याद नहीं है, बट हाँ ये याद है कि किसी की कोई क्वेरी थी, ठीक है। Now this is the market जहां पे allocative efficiency है। Allocative efficiency means consumer surplus is just equals to producer surplus। तब तक ये मैं लास्ट टॉपिक बता रही हूँ, अगर जिसकी भी क्वेरी थी प्लीज पूछ ले, ठीक है। सो दिस इज योर डिमांड कर्व, this is your supply curve and this is your price, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में जो फर्म्स, दिस इज नथिंग कंज्यूमर सरप्लस, विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट इज विलिंग टू पे एंड दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। रेडी कर चुके हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हमारी इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे होती है एंड द फर्म्स आर अर्निंग ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। So this is your equilibrium point. So here allocative efficiency means consumer surplus is equals to producer surplus, दोनों जो हैं maximum surplus में। Consumer surplus is consumer willingness to pay, यहाँ पे है उसकी willingness to pay minus what he actually pays. Producer surplus is what the producer is expecting कि मुझे सेल के बाद प्रोडक्ट पे कितनी प्राइस मिल जाएगी एंड व्हाट ही एक्चुअली गेट्स इज प्रोड्यूसर सरप्लस। सो द दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों जहां पे इन परफेक्ट कंपटीशन दोनों कंज्यूमर सरप्लस भी
मैक्सिमम है एंड प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैक्सिमम है, सो दोनों इक्वल है एंड दैट्स व्हाई जो है इसको हम एलोकेटिव एफिशिएंसी ही भी बोलेंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी? This is all about your syllabus. Any other question, query? फिर से पूछ रही हूँ। Okay, no question. Coming towards the arc elasticity, the one last में जो पूछा था, arc elasticity is measured at a point. आर्क के किसी एक पॉइंट पे हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, I just want to find out the elasticity. This is my demand curve, and I just find out the elasticity at this point A. ठीक है। So what exactly it is that is A पे मुझे फाइंड आउट करनी है। मैंने A से एक पॉइंट कर लिया ऑन दी एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। A प्राइस पर proportionate change in quantity demanded divided by price. अब हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट आउट से फाइंड करने के लिए सेम वही एक रेशियो निकाल लेंगे। सो इन दैट केस व्हाट वी विल फाइंड आउट, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस, लाइक दिस वन। क्वांटिटी डिमांडेड, ये मेरा चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में। प्राइस में चेंज क्या आया है, मैं प्राइस, ये मेरा प्राइस में चेंज है, चेंज इन प्राइस। ये है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तब जब मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगी, देन आई विल गेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉर्मली आर्क इलास्टिसिटी हम कर्व शेप डिमांड कर्व में फाइंड आउट करते हैं। जिस पॉइंट पे हमने इलास्टिसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे हम कर्व बना एक आर्क बना के and then we will find out the elasticity. Change in quantity demanded by change in price से ही हम find out करते हैं। डेटशीट में दो पेपर क्लैश नहीं करते हैं बेटे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और जो है पॉल साइंस है। तो अल्फाबेट में इकोनॉमिक्स पहले आता है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर जो फर्स्ट डेट को होगा उस पे आप दोगे, एंड पॉल साइंस का पेपर जो सेकेंड डेट में होगा उसमें देंगे। हाँ, अगर आपके पास इंग्लिश है एंड इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का ई और सी हो गया, सो पहले फिर आ गया इकोनॉमिक्स एंड बाद में आ गया इंग्लिश। एक आपके पास इकोनॉमिक्स प्लस अरेबिक है, अरेबिक फिर पहले होगा, इकोनॉमिक्स बाद में होगा, ठीक है। या फिर मैं और एग्जांपल लेती हूँ, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस है, तो इसमें हिस्ट्री का पेपर पहले होगा, पॉल साइंस का पेपर
बाद में। गॉट इट? नंबर जरूरी है। अच्छा, मैं थोड़ा आपको पैटर्न मेरे ख्याल से पहले बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 किया है, क्वेश्चन 1 की आपने 5 शीट्स बनाई है, ठीक है, उसको क्लियर पिक लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना क्वेश्चन 1 के आगे ही, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेकंड आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उस पर कुछ भी अपलोड नहीं करना। क्वेश्चन 3 आपने अटेम्प्ट किया है तो उसके क्वेश्चन 3 के आगे जितनी भी शीट्स होंगी उसकी एक पीडीएफ बनाना, इमेज टू पीडीएफ करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत इजीली जो है वो पीडीएफ बन जाती है। तो आप उसको डाउनलोड करना, बनाना एंड अपलोड कर देना। 1 मिनट भी नहीं लगता उसको इमेज से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस मत लिखो, बट क्वेश्चन नंबरिंग जरूर होनी है। ईच एंड एवरी पेज पे आपका रोल नंबर जरूर होना चाहिए। फर्स्ट पेज, टाइटल पेज पे आपका नेम, आपका यूनिक पेपर कोड नंबर, आप देखना आपकी डेट शीट में होगा, पेपर के नाम के आगे यूपीसी करके लिखा होगा, यूपीसी ऊपर हेडिंग होगा, नीचे उसका नंबर होगा कुछ 6, 7, 8 डिजिट्स का, तो आप देख लेना, नोट कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे भी होता है, रोल नंबर पे भी होता है आपके, ठीक है। एंड डेट ऑफ द एग्जाम, मीडियम आपकी ऑप्शनल है, लिखना लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। और ये सब काम आप पहले करके रखना एग्जाम से, अपने पास पेपर्स फाइंडर रखना और ये सब लिख के रखना, पहले फ्रंट पेज बना के रखना, हर शीट पे आप रोल नंबर लिखना, ठीक है। हर शीट पे आपने रोल नंबर लिखना है। एईसीसी बच्चे आपको दोनों पढ़ने होते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, आई थिंक सो। तो एक सेमेस्टर आपको एक मिल जाता है, दूसरे सेमेस्टर दूसरा मिल जाता है। I don't have now. I am not in that WhatsApp group. Sorry, Danish. Now I am not. हाँ, एक और चीज, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, टीम्स ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगी मैं मैसेज देके के आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। आप टीम्स में, इसी टीम्स में मेरा नाम सर्च में नाम के आगे आप उसमें अपना क्वेश्चन पुट कर देना, तो मैं, मेरे पास जब भी टाइम लगेगा, जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगी, मेरा वैसे मोबाइल पे एक्टिव रहता है टीम्स हर टाइम, तो जब भी मतलब आई गेट टाइम आई रिप्लाई, ठीक है। नंबर भी लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स और ईवीएस की तो फिक्स डेट होती है बेटा, ईवीएस तो एईसीसी का पेपर है, इकोनॉमिक्स के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन होगा कोई आपका। ईवीएस इज नॉट यू नो ऑप्शनल नहीं है, वो कोर पेपर है ये, मतलब ये डीएससी है, वो कोर पेपर, वो तो अलग मैटर है, उसका नहीं है। 2 पेपर क्लैश होते हैं जो आपके डीएससी वाले, एईसीसी, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 पेपर की फिक्स डेट्स होती है, इसमें कोई क्लैशिंग नहीं होती है। पेपर कैसे होते हैं, पेपर तो पेपर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम नॉट देयर, आप मुझे टीम्स में मैसेज कर देना, ठीक है। और भी पेपर, आई कांट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपरली, में पेपर कैसे होते हैं, पेपर तो बच्चे घर से ही होते हैं, आप अपने घर से अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको 2:30 पे मींस आपको जब जो भी आपका एग्जाम टाइम होगा, आई गेस 2:30 है, 3 है, तो उससे आधा घंटा पहले अपलोड हो जाएगा। मैं आप सबको एक सजेशन देती हूँ, जिसका भी क्वेश्चन पेपर पहले डाउनलोड हो जाए, उसको
तो आप सब अपने अपने कोई ना कोई ग्रुप्स में हो तो उसमें ग्रुप में शेयर कर देना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो इफ पॉसिबल तो मुझे भी शेयर कर देना। वैसे मैं खुद से भी देख लूंगी, ट्राई कर लूंगी, बट अगर आप डाउनलोड करके सेंड कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके अलावा आपके पास 3 आवर्स हैं पेपर करने के। एंड आई सुजेस्ट यू वन थिंग, पेपर के टाइम पे ये मत सोचना कि हम पेपर करने के लिए बैठे, मतलब पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसको गूगल करेंगे तो हम टाइप कर देंगे, तो नो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ऐसा सोच के चलोगे। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो इट्स बेटर आप पहले पढ़ के रखना, अपना जो भी पेपर है आप पढ़ के रखने, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के रखो, अपने सिलेबस कंप्लीट करके रखो, रिवाइज करके रखो, मतलब 4-5 बार इनफैक्ट रिवाइज करो ऑफलाइन पेपर की तरह। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के पढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन लिखो, क्वेश्चन की मीन्स आंसर्स की स्टार्टिंग में जो भी उसने पूछा उसकी इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन देने के बाद जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है वो लिखो, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन। डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनानी है, विद द हेल्प ऑफ स्केल ले लेना, स्केल नहीं है तो नहीं मिल रहा तो इधर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करना, कोई भी कार्ड है, कोई बुक है, कुछ भी है, यू कैन यूज दैट। प्लस पेंसिल और पेन से फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है, आप उसको कितना क्लीन बना रहे हो उससे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करो एंड साथ साथ अपलोड करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। दोनों बुक्स पढ़नी है, दोनों एक सेमेस्टर की है। आई एम सेइंग आई एम नॉट इन दैट ग्रुप। अभी तो आपका बेटा एग्जाम पे ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जाम में शायद ऑनलाइन हो। डेटशीट डीयू की वेबसाइट पे है, ऑनलाइन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन आई हैव डेट ऑफ पेपर, तो बच्चे आपके कॉम्बिनेशन पे अफेक्ट पड़ते हैं ना कि क्या है आपके पास, मुझे कैसे पता होगा कैसे हैं। डीयू की वेबसाइट खोलो, उसमें से रेगुलर और एसओएल की सेम डेटशीट है, तो आप उसको डाउनलोड कर लो और उसके देख लो अपने सिलेबस, सॉरी पेपर्स के अकॉर्डिंग आपका पेपर कब है, ठीक है। Anything else you want to ask? स्नेहा, सॉरी मैं आपसे तो पूछना ही भूल गया, आपको तो आपकी इलास्टिसिटी समझ में आया? मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ कुछ पाफा कंपटीशन के, बाकियों के तो खत्म होते सार बता दिए थे। यूनिट आपको सिलेबस देखो, सिलेबस में सब कुछ गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस सिलेबस। मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था, तो आप एक बार चेक करो सिलेबस, नहीं तो डीयू की वेबसाइट, एसओएल की वेबसाइट, दोनों जगह है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ग्रुप का लिंक नहीं, ये टीम पे मेरा नाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, तो वहीं पे मैसेज ड्रॉप कर देना। ग्रुप नहीं है, लिंक नहीं है उसमें, आप में वैसे ही मेरा नाम टाइप करोगे तो यू विल गेट, यू विल एबल टू मैसेज मी। हाँ जी बेटा, पेपर ऑनलाइन होंगे। बता दीजिए जीए पेपर कैसे हो गया होगा? कौन सा जीए पेपर बेटा? आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। बिल्कुल डायग्राम के साथ बनाना। पाफा कंपटीशन में व्हाट आर द assumptions of पाफा competition? Equilibrium of पाफा competition in the short run, long run, shutdown point. What is the shutdown point?
यहाँ फर्म्स कहाँ तक ऑपरेट कर सकती हैं, करें, or else what is the shape of the revenue curve under the perfect competition, long run supply curve of the industry, ठीक है। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो परफेक्ट कंपटीशन से इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, हर चैप्टर में से आपको अब 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, तो 2 या 3 क्वेश्चंस तो सब चैप्टर में से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल की थोड़ी सी बता रही हूँ, आप कैलकुलेट करना। मैं सिर्फ बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर न्यूमेरिकल आए तो कैसे करना। डिमांड इक्वेशन इज गिवन, कोई एक डिमांड इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल 10 + 15 क्यू है, प्राइस इज इक्वल 10 + 5, तो सब डिमांड इक्वेशन गिवन है, सप्लाई इक्वेशन गिवन है, किसी भी फॉर्म में दी हो सकती है, क्यू की फॉर्म में भी दी हो सकती है, प्राइस की फॉर्म में भी दी हो सकती है, डिमांड एंड सप्लाई भी लिखा हो सकता है, ठीक है। दिस इज द डिमांड इक्वेशन एंड दिस इज द सप्लाई इक्वेशन। ऊपर वाली डिमांड है, तो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, डिमांड को, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, यहां से आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी, किसी एक इक्वेशन में प्राइस पुट कर देना, क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो क्वांटिटी फाइंड आउट करके आप यू कैन गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, 2 चीजें आती। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन प्रॉफिट का निकालना है तो टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस जो भी आपने फाइंड आउट किया है मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी, ठीक है। AR निकल जाएगा आपका, AR इज नथिंग बट द प्राइस, या फिर और इसको कैसे कर सकते हैं, TR बाय Q से कैलकुलेट कर सकते हैं। MR को चेंज इन मार्जिनल रेवेन्यू और चेंज इन टोटल रेवेन्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी साइड अगर उसने प्रॉफिट पूछा होगा तो कॉस्ट का पक्का दिया होगा। लेट्स सपोज टोटल कॉस्ट इज गिवन एज 100 + 15 क्यू, ठीक है। 100 क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट। जब आउटपुट 0 है, व्हेनेवर आउटपुट इज इक्वल्स टू 0, जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहां से आप MC फाइंड आउट कर लोगे। टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन भी निकल सकती है, तो MR इक्वल्स टू MC, जहां पे इक्विलिब्रियम होगी, जहां पे परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम में होगा, MR इज इक्वल्स टू MC, ठीक है। सो उससे आप P निकल गया, Q निकल गया, MR MC आ गया, तो देन आप प्रॉफिट निकाल लेना बस। TR माइनस TC, ठीक है। तो एक ये एक मतलब परसेंट चांस है, मैंने बता दिया। A4 साइज शीट पे प्लेन पे ही है, प्लेन शीट्स पे, लाइंस वाली शीट्स नहीं है। ऑन प्राइस इलास्टिसिटी तो नहीं होता, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होता है जब किसी और फैक्टर का अफेक्ट करने से आपकी जो डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, मींस किसी और सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी की प्राइसेस पे जो आपकी इलास्टिसिटी पे अफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी। एग्जांपल, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स विल डिक्लाइन, ठीक है। या फिर नहीं सॉरी, ये तो हाँ राइट, CNG की प्राइस
पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड फॉर CNG कार इंक्रीजेस. दिस इज ऑल्सो यू कैन से. डाउनलोड कर लो फिर देशित बेटा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बच्चे, जैसे जब मुझे खर्चा ज्यादा पड़े एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स. आप जब कार ले रहे हो, कार चला रहे हो, 5 साल 6 साल हो गए कार को, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर देना पड़ रहा है उस कार पे. फॉर एग्जांपल बार बार वो रिपेयर मांग रही है, कभी गियर बॉक्स खराब हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी फैक्टर अफेक्टिंग दी basically the production cost is called the diseconomies of scale. Especially internal भी हो सकती है, external भी हो सकती है. Internally because of the internal factor of the commodities, internal factors of the firm. External में हमारे external factors है, means बाहर के, मीन्स आपके घर के पास कोई इंडस्ट्री बन गई, आपको एयर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ा, आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, सो वो क्या है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ द. मेरी तो क्लास लास्ट है आज आपके साथ. आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट बेटा. टीम्स बच्चे, मेरी टीम्स की आईडी, मेरा नाम सर्च करोगे, सरबजीत कौर को सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा. अभी आप जैसे क्लास एंड होती है ना, तो आप क्लास में आप उसमें चैट बॉक्स में उसमें सर्च करना, आपको मिल जाएगा. ठीक है. क्या बताऊं सक्सेना, मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन क्या है. आई होप आई हैव रिप्लाइड. और ये आपको आई डिड. आगे इलास्टिसिटी अभी मैंने बताया था पेपर पे. Anything else guys? Expansion path, the different equilibrium points in the production. A4 blank sheets बताया different equilibrium points को जब हम क्लब कर देते हैं, we will get the expansion path in the production. ठीक है. This is one isoquant, this is another isoquant, this is nothing but the expansion path. Anything else? क्या नहीं पता, आप पता कर लीजिए. आपको शेड्यूल होगा ऑनलाइन, सब कुछ शेड्यूल वेबसाइट पे है. तो मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मेरी और कोई क्लास नहीं है. दिस वॉज माई लास्ट क्लास. आई होप देयर इज नो मोर क्वेश्चन. अभिषेक, आप मुझे मैसेज करो, आपको मिल जाएगा मेरा नाम वहां पे आराम से, एंड मैसेज आ जाता है मेरे पास. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मुझे टीम्स पे. मेरा यही वाला आईडी है, सरबजीत कौर. ठीक है. ओके गाइस, देयर इज नो मोर क्वेश्चन, सो आई विल टेक यू लीव नाउ. ऑल द बेस्ट गाइस. अच्छे से पेपर देना, पढ़ के पेपर देना, गूगल पे डिपेंड नहीं होना. सब टीचर्स को समझ आता है क्या कॉपी किया है, क्या खुद से. क्वालिटी के नंबर मिलेंगे, क्वांटिटी के नंबर नहीं मिलते हैं इकोनॉमिक्स में. क्वालिटी बहुत मैटर करती है. डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं. डायरेक्ट क्योंकि ऑब्वियसली ओपन बुक है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक फर्म को प्रोडक्शन देता, ठीक है। इट्स अ कनकेव टाइप। नरेश जी एंड कर दीजिए सेशन। ओके मैडम, ओके। Okay guys, thank you, bye, take care, all the best.